Hello students, good afternoon. I hope you all are doing well. So my name is Imani Sharma and I'll be your UGC NET educator for English literature, right? So I welcome you all here. This is my first class with you all and we'll be quickly taking a look at what are the units and topics that I will be covering. And then we'll gradually be moving forward by understanding why you guys have chosen Drishti as the platform to make sure that your preparation is going nicely, being done nicely, so on and so forth, right? So we will be taking a look at all these major factors, how to prepare for your examination, what are the changes which are being observed, right? किन किन चीज़ों पे आपको जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ों को ग्रेजुअली इन टुडेज ओरिएंटेशन सेशन, as because of the fact that it is my first class with you all, we will be beginning with that, right? And thoda sa minor sa introduction we will be taking with regards to Chaucer, right? Because after Anglo section and Anglo Norman, the important age that we see that comes in here is the age of Chaucer, right? So Geoffrey Chaucer, or if you want to pronounce him as Geoffrey Chaucer, he is famously known to be the father of English poetry. He is known as the father of English literature. Now, why do we give him this particular name? Is what we will be discussing, and eventually there will be shifts in the English language. We will see that English language में बहुत सारी changes आने वाले हैं. The language that you might have seen with regards to Beowulf, which was a very very important work in your Anglo-Saxon and Norman age, Caedmon की Haim, ये सारे जो थे ये सारे पुरानी इंग्लिश में लिखे जाते थे. They were all written in the forms of old English which was prevalent and which is not readable in today's time. आज के टाइम पे अगर आपको बेवुल्फ की स्क्रिप्ट या कैडमन की स्क्रिप्ट दे दी जाए, you will not be able to read that entire script, right? So we will be talking about all those things. So I would try to introduce first of all myself as a person who's having some experience, who's having 3 years ka experience, 2 to 3 years ka experience I am having in the field of English literature, teaching NET K students, right? I have also, I have been a person who has graduated from a lovely professional university. I have done my bachelor's in English honors from there because my hometown was near. ठीक है, तो I belong from Kapurthala, Punjab. And coming back to the fact that with regards to my masters, I have completed my post graduation from Punjab University, Chandigarh. Very nice times, very nice culture, and as well as the campus that was there. Right. So नेट की बात करी जाए तो यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर इन द ईयर 2021 और 2020 आई गिव, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई क्लियर्ड इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. व्हाई एम आई ब्रिंगिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन हियर इज दैट आई वाज अ पर्सन who knew nothing about net in her masters. I never knew that I'll have to, if I want to be a professor, I'll have to give this particular national level का eligibility test, है ना? तो आई यूज टू सी माई फेलो मेट्स बीइंग रियली द वंस जो कि इसकी प्रिपरेशन करते थे मास्टर्स के टाइम पे, बट आई वाज नॉट ऑफ दैट सॉर्ट्स. I enjoyed my college life there and then I also realized by the end of the course, when I got out, I got some time क्योंकि then COVID happened, right? March 2020. तो COVID जब हुआ था, it was my last semester in my post grad. तो उसके बाद what happened was that at that particular time period I started experimenting with this particular thing of me knowing about the history of English literature just for my own sake. And then eventually I came to know about through my best friend that she also told me that she is preparing for NET. So eventually वो धीरे धीरे चीजें जो थी they started popping up there and then. So उससे क्या हुआ जब I tried to test my limits, ठीक है? So without any sort of coaching or anything like that, I tried to make sure that yes, of course, I can clear this examination. What I was lacking in the beginning was a sort of disorganization, I would rather say. Disorganization थी क्यों? Disorganization because of the fact, and because अगर इस fact की बात कर रहे हैं हम,
It was because I had many books with regards to history of English literature, literary theory, but I was not sure where to stop. So, what I did was that I made sure that I need to first of all compile the materials and make sure कि उनको थोड़ा compress कर दिया जाए. I limit my resources. Same जो मैं आपको pointer आज की orientation session में बताने वाली हूँ, that you guys should be able to make sure that where to stop. आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक आपने मटेरियल ढूंढना है. That is smart study. You are going to put in hard work. I would want hard work from you all because in my classes you will be getting homework. ठीक है, homework मिलेगा. And even if we are not on regular talking terms because of the fact that right now the console is still on an updation, ठीक है, जो टैबलेट से आप लोग के साथ कॉन्वर्सेशन होनी थी, इट इज स्टिल अंडर प्रोसेस ऑफ द अपग्रेडेशन, है ना. तो उस सेंस में even if we are not being interactive in that sense, I am imagining you guys all in here, right? So I want that whatever I ask you to do, you all play, all pay heed to that thing as well. Okay? So it is not difficult to clear your net in your first attempt. Now there will be students who would not have cleared their net in the first attempt, might have joined Drishti. That is also completely an understandable thing. Now why? Because here Drishti is going to be the guiding figure or the guiding light. The mistakes that I have also made in my self study, mistakes क्या थी? सबसे पहले ही आपको बता दी that the first mistake that I made was that I kept on collecting materials. बहुत सारा material हो जाता था. Then I used to feel really overwhelmed, right? I was like, oh my God, how am I going to cover this? This is the history of English literature, right? I read David Deutsch's, बट डिड नॉट रीड इट कम्प्लीटली टू बी ऑनेस्ट. ज़्यादा नहीं पढ़ पाई मैं उसको और ना ही मैं पढ़ना चाहती थी क्योंकि दैट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ वेरी वेरी वास्ट. इफ़ यू आर अ रीडर एन एविड रीडर तो आप प्लीज़ गो थ्रू करिए. आप लोग को आपके कोर्स में जो बुक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर मैं बात करूँ, पहला पॉइंट ही हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं कि वाई आर वी गाइस थिंकिंग ऑफ दृष्टि, लाइक वाई you guys are thinking of Drishti here? Why have you come in here spending all your money? It is because of the fact that you want to gain some sort of guidance from the experts, right? I would call this thing a journey of you all, which will lead you to a place where you want to be if you simultaneously, plus this is very important thing in my classes, I really want you all to be having this quality of consistency. Consistency in what sense I am trying to say? Consistency in the sense that whatever homework I am giving you, you will not stack that homework for the next day. You will not procrastinate in my classes, because of which you will not understand अभी नहीं समझोगे, क्योंकि ये भी मैंने खुद के साथ किया था कि मैं खुद के लिए होमवर्क बनाती थी कि इतना कर लेती हूँ, and then I used to put it to the next day. ठीक है, नेक्स्ट डे तक कर लिया. दिस हैबिट वेंट फॉर 1 or 2 weeks, गई. देन आई वाज लाइक नो, आई हैव नॉट, आई हैव स्टैक्ड माय होमवर्क इन दीज मेनी चंक्स एंड एवरीथिंग. जो मैं चीज़ें ब्रेक डाउन करके पढ़ रही थी और पढ़ सकती थी ब्रेक डाउन करके, जो मैंने अपने लिए खुद रूल्स बनाए थे, उन्हीं को मैं नहीं फॉलो कर रही हूँ. एंड आई एम learning things in a very very descriptive manner. Of course I need to do that, but where and what about the homework? Because majority of your chunk is also related majority of your chunk is also related to the summaries, related to the terms and terminologies, etc. So how are you going to put in the effort there? अगर पहले दिन से कंसिस्टेंट रहोगे, मेरा मन करेगा कि आपको होमवर्क देना है, तो उस होमवर्क को हम ग्रेजुअली कंप्लीट भी तो कर पाएंगे ना. स्टैक करते रहोगे, फिर कीप ऑन स्टैकिंग द होमवर्क वन ऑन वन. तो लास्ट डे जब एग्जाम देखेगा ना पास में, यू विल फील सो ओवरवेल्म्ड दैट यू विल बी लाइक, ओ माय गॉड, हाउ टू कंप्लीट दिस मच होमवर्क, राइट? सो वी डोंट वांट टू फील ओवरवेल्म्ड इन दैट पर्टिकुलर सेंस. हमको ओवरवेलमिंग फील ही नहीं करना है. व्हाट वी वांट टू फील इज the feeling of calmness, the feeling of confidence that yes, of course, me being consistent, right, and me putting the efforts in the right direction is where I'm leading. What will happen here now that यहाँ पे आप लोग
आप लोग के साथ में जो भी, चाहे आपका कंपटीशन वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपका कंपटीशन वो बच्चे जो आपके साथ ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, how will you be different from your competition is you always need to make sure that you are doing more than your competition. मैं तो होमवर्क दोनों बच्चों को दूंगी, मेरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आई विल बी गिविंग होमवर्क टू ऑल ऑफ यू, बट what do I expect in return, and how will you assess yourself? कंपटीशन की तो बात चल रही है, लेकिन अपने कंपटीशन से बेहतर करोगे तो समझ पाओगे ना दैट यू आर डूइंग बेटर, है ना? तो वो बेटर तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि वही होमवर्क आपको मिल रहा है, वही होमवर्क 10 और बच्चों को मिल रहा है, 10 में से 2 ने कर लिया तो वो आपसे 2 कदम आगे चले गए। सो ये थोड़ा सा पॉजिटिव कंपेटिटिव स्पिरिट होना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फील्ड ऑफ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, सो टू से। ठीक है, यू विल बी गेटिंग हैंडआउट्स मिलेंगे आप लोग को, ठीक है? रेगुलर डीसीएस होते हैं, दैट इज योर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, ठीक है? एंड द शेड्यूल इज सेंड टू यू वाया ईमेल, ईमेल पे आ जाता है। तो अगर तो एक आध दिन पहले टीचर्स हम लोग भी इन्फॉर्म कर देते हैं जब हमारे पास लिंक आ जाता है कि नेक्स्ट डे आपका डीसीएस होगा, ठीक है? अगर नहीं भी हम इन्फॉर्म करते तो you guys do get a link. Now make sure that this link is the one which the email ID that you have provided while registering yourself on the Drishti learning application. Now what happens major times पे, majority of the times पे क्या चीज होती है कि बच्चे कर लेते हैं मदर फादर के ईमेल से रजिस्टर, they register their own selves they through the Drishti learning app with using their parents' you know, if we are trying to talk about it in here, they use their parents' email ID, and then when it comes to them receiving a sort of an email for the doubt clearing session, they are like, oh, where is the email, where do I get it, right? So email might be in your spam, आपके spam folder में हो सकती है, या फिर whichsoever email ID that you have registered yourself from, right? So you need to make sure that you are checking the mailbox from the and of the registered email ID that you have, ठीक है? Coming to the next point, ये आपको handouts मिल रहे हैं, आपको आपकी बुक्स भी मिल रही हैं साथ में। तो बुक्स में ऑलरेडी आप लोग को you guys are getting the chunks of history, the literary background, the socio cultural background of the particular age। जैसे चौसर की बात करें अगर, तो चौसर की एज में भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सपेक्टिव थे। देन देयर विल कम अ पर्सन नेम जॉन वाइक्लिफ आएंगे एंड वो बाइबल को ट्रांसलेट कर देंगे। सो पीपल हु वर हैविंग दी स्ट्रॉन्ग रूट्स ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म, ऑफ क्रिश्चियनिटी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्टॉर्ट होती हुई दिखेंगी, ठीक है? चौसर हिमसेल्फ वाज फ्रॉम द फैमिली ऑफ वाइन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, तो उसको तो मौका मिल गया। He was one such person who was having access to being with nobility, serving them, being with them, sitting with them, being a person who had been an ambassador to different countries. चाहे हम फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, इंग्लैंड से तो वो थे ही। तो इसीलिए चौसर की एज भी अलग अलग उसमें डिवाइडेड होगी। तो आप लोग अपनी बुक्स को हमेशा साथ में लेके रखेंगे। बुक्स पे आई विल कीप ऑन टेलिंग यू द पेज नंबर्स फ्रॉम वेयर यू आर सपोज टू रीड फॉर द होमवर्क एंड एवरीथिंग लाइक दैट। और होमवर्क के साथ साथ में बच्चे आप लोग ये चीज़ इंश्योर करेंगे दैट यू आर डूइंग व्हाट इज टोल्ड बाय मी। आप उसको कंप्लीट करके रहोगे, जितना डिलीजेंट हो सकते हो उतना बन जाओ इन 4-5 महीनों के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, बिकॉज दिस टाइम इज नॉट गोइंग टू कम बैक, राइट? सो you are supposed to make sure that you are reading the history from the books and everything like that. इससे क्या हो रहा है, अब ये जो आपको हैंडआउट्स मिल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, आपको वन स्टॉप मटेरियल मिल रहा है जिसको आपको रेफर करना है। यू आर गोइंग टू रेफर टू दिस पर्टिकुलर मटेरियल, right? And you are going to make sure that yes, of course, you are noting these things down, right? So not just doing it from the literary perspective, but you're also learning things, you're also trying to grasp what is being taught in the classrooms, and also revising it in your homework as well, राइट? सो ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ जितना दे दिया मैम ने उतना पढ़ लिया, उतना तो पढ़ो ही पढ़ो। अगर लगता है यू आर सपोज टू रीड एक्स्ट्रा और समथिंग लाइक दैट, प्लीज डू मूव अहेड विद दैट, राइट? सो just wait for a second now.
सो दृष्टि में आपको हैंडआउट्स मिल रहे हैं, आपको बुक्स मिल रही हैं, बुक्स में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, यू विल रीड अबाउट द लिटरेरी, सोशो कल्चरल बैकग्राउंड, so on and so forth. And all these books and handouts that you're getting, especially the books which are there, they are made in an exam oriented approach. Now what will happen when you are having exam oriented approach kind of books? You are getting the material, bachche, and this material is somewhere or the other very much comprehensive yet very much informative. ठीक है, तो आपको information मिल रही है, factual हो गई, descriptive information हो गई, वही information के साथ साथ में you are getting a hold of the concepts, you are getting the hold of, जैसे अगर मैं अभी चौसर की एज की बात करूं, we will be having we will be talking about a term जिसको फैब्ल्यू बोलते हैं. अब फैब्ल्यू क्या होता है? चौसर के टाइम पे देयर वर डबल मीनिंग सॉर्ट ऑफ टॉक्स. तो जब सेक्सुअल टॉक्स होती थी एंड देयर वर पोम्स और somebody used to write some story about that, उसको फैब्ल्यू बोला जाता था. ठीक है, तो इसमें पीपल दे वर द वंस हु वर हैविंग, और चौसर की टेल्स में बहुत सारा ऐसे हमको देखने के लिए मिलेगा where we'll be laughing our hearts out, we will be seeing people Chaucer mingling these factual informations, mingling these short stories, जहाँ पे डबल मीनिंग बात तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ में there is a hidden sort of a comic relief that is also coming in here, right? So that you will also see. और आपको क्या करना है, अब इतनी चीजें साथ साथ में मैं बताई जा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज एन ओरिएंटेशन क्लास फ्रॉम माई एंड. ये कोई भी बच्चा है, कोई भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आ रहा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको पता हो कि स्टडी कैसे करनी है और सिलेक्टिव स्टडी कैसे करनी है. आप लोग क्या करेंगे, जब मैंने आपको होमवर्क दिया, आई विल गिव यू द होमवर्क ऑफ द मेजर वर्क्स, जैसे आई विल बी गिविंग यू द होमवर्क ऑफ द जनरल प्रोलोग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स. जनरल प्रोलोग में जो बात करी गई है चौसर ने, चौसर हैज टॉक्ड अबाउट द कैरेक्टर्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे आर वेयरिंग, राइट. जैसे अगर हम सबसे पहले कैरेक्टर की बात करते हैं, चौसर टॉक्स अबाउट द नाइट. अब नाइट जो है, ही हिज क्लोथ्स एटसेट्रा, जो ट्यूनिक उसने पहनी हुई है, इट्स मतलब फुल ऑफ रस्ट. इट मीन्स दैट ही इज वन सच पर्सन हु हैज फॉट मेनी वॉर्स. बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़के आए हैं, बहुत सारे युद्ध करके आए हैं. ही हैज इवन गोन ऑन द होली वॉर्स एटसेट्रा, right? So how come is he wearing those clothes? He's also traveling with his son and एक यौमन के साथ travel कर रहे हैं. So ये सारी चीजें जो हैं हम लोग देखेंगे. Just wait for a second बच्चे. ठीक है, सिलेक्टिव स्टडी में you will limit your sources. You will और लिमिट करके, अगर मैं आपको बात करूं अबाउट द मेजर वर्क्स दैट आर देयर, ठीक है, उनके रिलेटेड आप लोग ट्राई करेंगे कि हो सके अगर लेटे लेजर टाइम में आप लोग क्विजेज ले लेंगे. ठीक है, क्विजेज ले लेंगे. क्विजेज कहाँ पे मिल जाएंगे आपको मिल जाएंगे, ये डेली स्टडी वाली बोल रही हूँ मैं आपकी. जैसे एज ऑफ चौसर के जनरल प्लोग आपने गूगल करा, क्विज ऑन चौसर्स जनरल प्लो, क्विजेज आएंगी, वो आप यहाँ पे देखेंगे. आप ग्रेड सेवर पे आपको क्विजेज मिल जाएंगी. यू विल बी एबल टू सी क्विजेज ऑन स्पार्क्स नोट, शायद स्पार्क नोट्स पे मिल जाएगी, एटसेट्रा. ठीक है, उन क्विजेज को सॉल्व करो. छोटा छोटा थोड़ा फैक्ट दिखता है, उसको नोट डाउन करो. तो अगर हम चौसर की एज की बात करते हैं, चौसर की एज को भी हम एक लिमिटेड तरीके से जो है समझने की कोशिश भी करेंगे. ठीक है, अब जो रिसेंट में द एग्जामिनेशन हैपेंड ऑन 18th June and before that in December as well, I saw that there were some changes in pattern. एक मिनट ये बात कर लेते, एक पॉइंट रह गया यहाँ पे मेरा आप लोग से बात करने का, क्रोनोलॉजी का. If any one of you have seen my video which was
ऑन यूट्यूब। हाँ जी, यहीं से यूट्यूब का भी पॉइंट आ जाता है। यूट्यूब इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ऑल ऑफ अस। यूट्यूब में आपके पास जो दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स का चैनल है, उस पे भी इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस डलती हैं, ठीक है। तो उनको भी आप लोग देखेंगे। पेपर वन की वीडियोस में, पेपर वन भी आई ऑल्सो टीच सर्टेन यूनिट्स, यू कैन व्यू दोज वीडियोस फॉर फ्री, ठीक है। पेपर वन का बैच इज ऑल्सो गोइंग टू साइमल्टेनियसली रन थोड़े टाइम में, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, क्रोनोलॉजी में आप नोट्स बनाएंगे अपने खुद के एनेक्डोटल तरीके से, खुद की स्टोरी से, और इससे स्टोरी के तो साथ साथ बनेंगे ही। इवन इन योर बुक, अगर आप अपनी बुक देखेंगे, बुक में क्रोनोलॉजिकली मोस्टली अरेंज्ड है। बुक आपको क्रोनोलॉजिकल मैनर में दी गई है, ठीक है। और उनमें बुक में जो पीछे मेजर वर्क्स के बॉक्सेस बने हुए हैं, दे आर ऑल्सो मोस्टली अरेंज्ड इन द क्रोनोलॉजिकल सेंस, ठीक है। सो बुक में आपको देखने के लिए मिल जाएगी क्रोनोलॉजी। सेकेंडली, अगर आपको कई नोट्स बनाने हैं, नोट्स आपके कैसे बनेंगे? नोट्स आप ईयर वाइज क्रिएट करोगे। थर्ड ट्रिक, ये मेरी खुद की पर्सनल ट्रिक है, तो आई एम शेयरिंग इट विद यू ऑल, दैट क्रिएट स्टोरीज एंड प्ले अराउंड। जैसे कि व्हाट आई यूज टू डू वाज कि अभी डीएच लॉरेंस, वही यूट्यूब पे इसी वजह से आई थी। यूट्यूब पे मैंने बताया था, ये डीएच लॉरेंस के ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न नॉवलिस्ट, ब्रिटिश नॉवलिस्ट। सो हिज वर्क्स दे आर कॉन्स्टेंटली आस्क्ड इन द नेट एग्जामिनेशन। ये 18 जून वाले में भी पूछे गए थे शायद। तो यू आर सपोज टू अरेंज देम इन क्रोनोलॉजी। तो उसमें मैंने अरेंज करा था, वाइट सा रेनबो वो रा सरला, ठीक है। सो वाइट पिकॉक, ठीक है। सा स्टैंड्स फॉर सन्स एंड लवर्स। रेनबो, द रेनबो, वो विमेन इन लव। राहा, वो आरा, एरन्स रॉड। सरला, SER, द प्लूम्ड सर्पेंट। La stands for Lady Chatterley's lover. So this is how I used to create stories for my own sake to make sure that the chronology वाला part is being done nicely. ठीक है। तो ट्राई करेंगे कि क्रोनोलॉजी को जिस भी तरीके से है हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको बड़ा लगेगा अभी कि हिस्ट्री डिफिकल्ट हो रही है थोड़ा समझने के लिए या कुछ ऐसे, क्योंकि मुझे भी लगा था। सो हिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट इन द सेंस दैट वी विल ट्राई टू मेजरली फोकस ऑन व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज। कैसे लोग उस एज में सोचते थे। जैसे चौसर की एज की बात करें, तो चौसर की एज में हम इंग्लिश को एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में आते हुए देखेंगे, है ना। हम देखेंगे इंग्लिश जो थी पहले, इट वाज अ लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। नाउ इट विल टेक द स्टेटस ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स एज वेल, बट द एरिस्टोक्रेट्स स्टिल विल मेक श्योर कि हम लोग जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, वी आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स इन अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैनर, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखेंगे जो लोअर क्लास के पीपल होंगे, दे विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश बट इन अ वेरी कॉमन सॉर्ट ऑफ टच, ठीक है। जो जस्ट टू मेक श्योर कि दोनों की लैंग्वेज सेम है, लेकिन पता चले कि मैं ऊपरी दर्जे से हूँ, मैं अपर क्लास से हूँ और ये कोई कॉमनर है लोअर क्लास से है, तो द ब्रिटिश यूज टू टॉक इन इंग्लिश इन अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सेंट which made to sure that they are being distinguished from one another. तो ये हो गया। आप एज वाइज नोट्स को देखेंगे, आप करेंगे। और आप लोग एक चीज और करेंगे जिसका हैंड आउट मैंने लास्ट बैच में भी अपलोड करवाया था, इस बारी भी आई विल ट्राई टू मेक श्योर आप लोग की ओपनिंग क्लोजिंग लाइंस ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क्स, इसका आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। यू विल गेट द प्रिंट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। उस प्रिंट आउट को ट्राई करेंगे हम लोग, देखें, पढ़ें, ठीक है। अपनी एज वाइज नोट्स के साथ साथ उनको देखें कि हाँ जी ये वाले चौसर की एज के रिलेटेड हैं। पोइट्री, जैसे रोमांटिक एज में जाके पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो पोइट्री के इंपॉर्टेंट लाइंस आ जाएंगे, है ना। रशियन में हमारी एना कैरेनिना जो है, all families are happy families, all unhappy families are unhappy in their own ways, ठीक है। So all these opening and closing lines that are there, just he died like a dog, ठीक है। So ये फ्रांस काफ्का के ट्रायल की लास्ट लाइन है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसी से मैं बता रही हूँ कि एग्जाम एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो एनालिसिस जो है आपको मेरी तरफ से जो मिलता रहेगा, तो आपको ज़्यादा उसकी ध्यान देने की उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम PYQs जो हैं उन पे ध्यान देंगे, ठीक है। PYQs पे ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी चौसर की एज हुई है ना, तो एज वाइज मैं आपको PYQs करा दूंगी,
ताकि हमारी एज जो है वो सॉर्ट हो जाए, हमको पता लग जाए हम कितने पानी में, हाउ मच आर वी प्रिपेयर्ड विद रिगार्ड्स टू द एज ऑफ चौसर। ऑल्सो एनालिसिस ऑफ PYQs में अगर हम देखें तो एनालिसिस ऑफ अभी रिसेंट वालों का भी अगर मैं आपको बताऊं तो रिसेंट वालों में भी यही चीज देखने के लिए मिली है कि आजकल दलित लिटरेचर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, दलित एस्थेटिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, देयर आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्राइबल लिटरेचर्स, देयर आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑटोबायोग्राफीज, जो हमारा किसका पार्ट है, ये हमारा नॉन फिक्शन का पार्ट आ जाती हैं, देयर आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिसेबिलिटी स्टडीज। तो ये मैं आपका कल्चरल में कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन साथ साथ में मैं एनालाइज करती रहती हूँ ताकि दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट हैबिट फ्रॉम आवर एंड एज वेल, दैट वी आर लर्निंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स, लर्निंग को हम कंटिन्यूटी में रखते रहें, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज़ें और बतानी थी आपको। हाँ जी, देर आर डिफरेंट साइट्स एज वेल, ठीक है, जिसमें आपको लिटरेरी टर्म्स देखने के लिए मिल जाएंगी। मेरी फेवरेट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, लिटरेरी terms.net करके है शायद, ठीक है। इस पे आपको सारी लिटरेरी टर्म्स मिल जाएंगी, कोई एक दिन निकालो, उसमें से सारी टर्म्स को कॉपी पेस्ट करो, पेस्ट इट इन वर्ड डॉक, गेट अ प्रिंट आउट फॉर योर ओन सेल्फ। तो इससे क्या होगा, हमें MH एब्राहम्स जितनी नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर लिटरेरी डिवाइसेस या लिटरेरी टर्म्स डॉट नेट है, प्लीज देख लेना इनमें से कौन सा है, लिटरेरी डिवाइसेस डॉट नेट है या लिटरेरी टर्म्स डॉट नेट है, ठीक है। ये समझ में नहीं आता तो एक और है आपकी which website was it, एक वी हैव ग्रेड सेवर, एक वी हैव स्पार्क नोट्स, एक वी हैव लिट चार्ट्स। लिट चार्ट्स के नोट्स भी अच्छे हैं, लिट चार्ट्स इज ऑल्सो गुड फॉर टर्म्स, ठीक है। तो इसको आपने इन साइट से टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा, टर्म्स रिलेटेड टू पोएट्री, ठीक है, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इन टर्म्स को आप लोग क्या कर लोगे, यू विल कॉपी पेस्ट देम, ठीक है। ये काम अब आपके करने वाला है, जहाँ पे आपको जो जो प्रोवाइडेड है वो मैं दे रही हूँ, कॉपी पेस्ट इन वर्ड डॉक एंड गेट अ प्रिंट आउट, गेट इट प्रिंटेड, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपको पूरी MH एब्राहम वाला जो होता है ना, एक स्टीरियोटिपिकल चलता आ रहा है कि सारी MH एब्राहम्स पढ़नी पड़ेगी नेट के लिए, ठीक है। इट इज़ गुड, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक, बट इफ़ यू हैव दैट मच टाइम जस्ट टू गिव इट टू लिटरेरी टर्म्स, एक दो क्वेश्चंस आने हैं जिनमें हमें क्वेश्चंस में मार्क्स स्कोर करने हैं, वो हम क्वेश्चंस में मार्क्स स्कोर इससे भी कर लेंगे एक स्मार्ट स्टडी के तरीके से, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग इन द एफर्ट्स, ऑफ कोर्स, बट यू आर पुटिंग इन द एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन एज वेल, ठीक है। देन मैं खुद के लिए क्या करती होती थी, आई यूज टू कलर कोड, ठीक है। मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ, जैसे आप दृष्टि वाली बुक्स पढ़ रहे होंगे, दृष्टि वाली बुक्स पढ़ते हुए क्या करना है, जैसे अगर कोई पॉइंट हिस्टोरिकल है, फैक्ट है, आपकी मर्जी, आप हाइलाइटर्स लेके बैठिए, हाइलाइटर्स से हाईलाइट का सारी किताब नहीं कर लेनी है। जैसे बचपन में आई यूज टू यूज हाइलाइटर, तब नया नया शौक था, तो आई वाज लाइक दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, एंड बाय द एंड ऑफ मी रीडिंग अ चैप्टर, द एंटायर चैप्टर वाज हाइलाइटेड, ठीक है। तो ये सबके साथ हुआ होगा, नो डाउट। हमको क्या करना है, हमको अब नोट्स भी बनाने हैं स्मार्ट तरीके से, लाइंस नहीं नोट डाउन करनी है नोट्स में, नोट्स का मतलब होता है पॉइंटर्स देना, पॉइंटर्स से चीजें चलाना, ठीक है। सो उस तरीके से हम लोग जो है चीजों को कवर करेंगे। तो कलर कोड कर सकते हो आप अपने तरीके से, यू कैन यूज पिंक हाइलाइटर, ब्लू हाइलाइटर, थोड़े सटल कलर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि सटल कलर्स आर द वंस, ये जब आप कलर कोडिंग करते हो ना, ये आपकी विजुअल रिटेंशन पावर को इंक्रीज कर देती है। मैं खुद का एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने आई डोंट नो इफ आई वाज गिविंग द एग्जाम ऑफ गेट और नेट का ही शायद पेपर दे रही थी, नेट का ही पेपर दे रही थी शायद। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड व्हाट हैपेंड वाज दैट आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम माय ओन नोट्स एंड आई यूज्ड टू हाईलाइट सर्टेन पार्ट्स। अब मेरे को आदत हो गई थी कि सर्टेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही जो हैं दैट आर सपोज टू बी हाईलाइटेड। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट आई वाज सिटिंग इन द एग्जामिनेशन, आई वाज लाइक, आ भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। सो इवेंचुअली आते रहे क्वेश्चंस, ऐसा भी नहीं था, अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के भी तरीके होते हैं, धीरे धीरे सब सीखेंगे, ठीक है, डरना नहीं है, वी आर इन दिस टुगेदर। व्हाट विल हैपन हियर इन दिस जर्नी,
will make sure that you are in the right direction, अगर आप willing हो. चलिए, तो मैं क्या बता रही थी, तो मैंने कलर कोड मतलब हाइलाइटर यूज करती थी, तो देयर वाज दिस वन वेरी लेसर नोन फीमेल रोमांटिक राइटर, ठीक है. सो हर नेम केम इन देयर एंड शार्लेट स्मिथ आई थिंक. सो उनका नाम आया पेपर में, तो आई वाज लाइक आई हैव हर्ड हर नेम, आई हैव रेड इट ऑन दिस पर्टिकुलर, आई क्लोज माय आईज, लिटरली आई डिड क्लोज माय आईज. एंड सेम वाज विद मी विद रिगार्ड्स टू द क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस. क्रोनोलॉजी को बच्चे फेयर करते हैं, बट क्रोनोलॉजी जिस तरीके से मैंने हर एक इंपॉर्टेंट राइटर की एक स्टोरी बना के याद करी थी और उसको राइम करके याद करा था, उससे इट हेल्प मी सिटिंग इन द एग्जामिनेशन राइमिंग दैट एंटायर थिंग इन माय माइंड एंड थिंकिंग कि हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है. तो नीचे ऑप्शंस को, अगर कोई एक अननोन वर्क भी है जो मैंने क्रोनोलॉजी में अरेंज नहीं भी करा है, तो ऊपर नीचे वाले अरेंज हो जाते थे, तो ऑप्शंस में एलिमिनेशन टेक्निक से चीजें सॉल्व हो जाती हैं, है ना. सो दैट इज ऑल्सो विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल हियर. तो ध्यान रखना है, तब मुझे याद आ गया, तब मैंने सही ऑप्शन मार्क कर लिया. एक आपके पास एप्लीकेशन भी है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, तो स्पेशली एनटीए अभ्यास, नॉट एनटीए अभ्यास 2.0, एनटीए अभ्यास पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. ये मॉक टेस्ट अभी से मत लेना, ये मॉक टेस्ट थोड़ा कोर्स को चलने दो, समझो चीज़ों को, जब लगे थोड़ा समझने लगे हो देन स्टार्ट टू incorporate these mock tests even in your weekend का schedules or even if you're sitting down. and mock test में बच्चे प्लीज दोनों के ले लेना, ये वैसे तो अलग पेपर स्पेसिफिक आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मॉक टेस्ट ले लेना. होमवर्क मैं आप लोग को दूंगी होमवर्क मैं आप लोग को दूंगी, तो उसमें मैंने आपको 2-3 अपनी फेवरेट वेबसाइट्स बता दी हैं रीडिंग द समरीज, ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की समरीज आपको बुक में दी हुई हैं, कुछ समरीज जो हैं दे आर गिवन इन द बुक. अगर मैं उन बुक की समरीज को बोलूंगी कि बुक के अलावा आपको इंपॉर्टेंट समरीज को और डिटेल में पढ़ना है, तो डिटेल्ड समरीज इफ प्रॉम्प्टेड इन क्लास, मैंने बोला है कि इनकी डिटेल समरीज पढ़नी है, तो किसकी डिटेल समरीज पढ़ोगे आप लोग, डिटेल समरीज पढ़ोगे. यू विल रीड द डिटेल समरीज फ्रॉम ग्रेड सेवर, you will read from spark notes, you will read from lit charts as well, ठीक है. अच्छा, विकीपीडिया इतना रिलाई नहीं करना है उस पर समरी के उसमें, लेकिन विकीपीडिया से आप मैगजीन, अगर कोई शॉर्ट स्टोरी है, अगर कोई स्टोरी है, नॉवल है, किसी पर्टिकुलर मैगजीन में सीरियलाइज्ड फॉर्मेट में अगर छपी है, कुछ भी है, कोई पोम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप वहीं से पढ़ ले. यू विल रीड फॉर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थोड़ा फ्रॉम द विकीपीडिया वाला पार्ट, ठीक है. विकीपीडिया का फैक्चुअल और प्लस इसकी इंट्रोडक्शन तो आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है, इंट्रो ज़रूर पढ़ेंगे. और आपको हैंडआउट्स तो आपकी दृष्टि लर्निंग ऐप पे मिल जाएंगे. कमिंग टू हाउ टू कवर हिस्ट्री, कमिंग ऑन हाउ टू कवर हिस्ट्री, हिस्ट्री में हम लोग हर एक एज के हिसाब से उसके इम्पोर्टेंट ईयर्स को उसके लिटरी बैकग्राउंड के साथ रिलेट करके वी विल मार्क द इम्पोर्टेंट ईयर्स एंड इवेंट्स दैट हैव हैपेंड right in that particular time period. We'll also make sure that we are doing the terms age wise. कुछ literary terms है, जैसे मैंने आज ही आपको एग्जाम्पल दिया ऑफ फैबलू. फैबलू बोला चौसर की एज में heroic couplet हमें देखने के लिए मिलेगा, जिनको वही कॉइन करेंगे. We will see him coining rhyme royale. We will see him using terms like palinode. palinode क्या होता है, ठीक है, एग्जाम्पलम क्या होता है, फैबल्यू क्या होता है. तो हम ट्राई करेंगे कि उस एज के साथ ही एज रिलेटेड टर्म्स ही कर लें, एज वाइज थोड़ा इंपॉर्टेंट मेजर टर्म्स कर लें. जैसे नॉवल कभी इंट्रोड्यूस होगा, तो उस नॉवल में अगर हम पिक्चरेस्क नॉवल की बात करते हैं, हम बात करते हैं अगर व्हाट डू वी मीन बाय कंस्तेरोमान, व्हाट डू वी मीन बाय बिल्डंग्सरोमा, ये क्या होती है, नॉवल विद द की, नॉवल अबाउट एन आर्टिस्ट, है ना, डेवलपिंग उसकी डेवलपमेंट के ऊपर. हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू वन अनदर, हम एज वाइज भी इनको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. और इनके प्रोमिनेंट फिगर्स भी साथ में चलेंगे. अच्छा, मेजर राइटर्स का पैटर्न देखा जाता है कि मेजर राइटर्स के कई दफ़ा हमने देखा है कि माइनर वर्क्स पूछ लिए जाते हैं.
और माइनर राइटर्स के मेजर वर्क्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। ठीक है, और जो भी होमवर्क दूंगी, जो अगर मैं होमवर्क की बात कर रही हूँ यहाँ पे, एक मिनट, होमवर्क को यू विल अरेंज प्रायोरिटी वाइज। यू विल अरेंज इट प्रायोरिटी वाइज। ठीक है, और आप लोग होमवर्क को अरेंज करेंगे। यू विल ऑल्सो हैव मॉक टेस्ट स्केड्यूल्ड। आप लोग के हर एक यूनिट के बाद मैं तो कुछ PYQ सॉल्व कराऊंगी ही कराऊंगी। आफ्टर दैट इंटायर, जैसे मॉक टेस्ट यूनिट वाइज नहीं होंगे, मॉक टेस्ट आपके होंगे पर्टिकुलरली मॉक टेस्ट विल बी हैपनिंग। पूरे ब्रिटलिट का मॉक हो गया, जैसे मैंने और आंचल ने पूरा ब्रिटिश लिटरेचर कवर करा दिया टिल द पोस्ट मॉडर्न एज, तो उस पे आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा, पूरा ब्रिटलिट पे हो गया। ठीक है, ब्रिटलिट पे हो गया आपका, मान लेते हैं इंडियन लिटरेचर इज द सेकंड पोर्शन, इंडियन पे हो गया, अमेरिकन लिटरेचर पे हो गया, ठीक है, ELT पे हो गया, या फिर आपका हो गया, ये सिर्फ हाइपोथेटिकली आई एम टेलिंग यू। तो ये आपके यूनिट वाइज नहीं हो गए, यूनिट वाइज PYQs मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो उसके अलावा जो आपका ये मेजर चंक के वाइज आपका मॉक टेस्ट होगा, थरो देखने के लिए कि थॉरली आपको फ्रॉम एंग्लो सेक्शन टू द पोस्ट मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एज ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, हाउ मच कैन यू रिकॉल, हाउ मच हैव यू रिमेंबर्ड, हाउ मच हैव यू लर्न। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगी, ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी। ठीक है, ये हो गया, कुछ कुछ पॉइंटर्स आई हैव मेड। ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर करें कि क्विजेस लेते रहें आप साथ में। क्विजेस के 15-20 मिनट ही लगेंगे आपके, लेकिन उससे आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद हो जाएगी। ठीक है, और नई इन्फॉर्मेशन जो आपको आपके कंपटीशन से ज़्यादा पता है वो हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं करनी है, जितना उन क्विजेस में कवर हो जाए। ठीक है, 1-2 क्विजेस ले लो, ख़त्म। ठीक है, और आजकल जो पेपर देखा जा रहा है आपका आपका पेपर आजकल बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव आ रहा है। समझना पड़ेगा बैठ के कि क्या लिखा क्या हुआ है, सवाल में पूछा क्या गया है, कॉम्प्रिहेंशन करनी पड़ेगी वहां पे बैठ के। तो योर रीडिंग एबिलिटी इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू you know looking at the question, understanding it very nicely, deeply, so on and so forth. And also it becomes really important with regards to not just understanding, ये comprehension आपकी लिटरेरी थ्योरी में पूछा जाता है, लिट क्रिट में ये सारी चीज़ें, लिट क्रिट में तो चलो फिर भी थोड़ा कम आती हैं, लिट क्रिट में टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज एक्सेट्रा थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। कल्चरल स्टडीज़ की बात करें, मोस्ट फेयर्ड यूनिट्स बाय द स्टूडेंट्स, तो लिट क्रिट और अगर हम लिट थ्योरी की बात करते हैं, कल्चरल स्टडीज़ की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स थोड़ा डर जाते हैं इन चीज़ों से ना, लिट क्रिट से, लिटरेरी थ्योरी से और कल्चरल स्टडीज से। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि वी आर ऑल्सो पेइंग अटेंशन टू दीज इम्पोर्टेंट थिंग्स इन ह्योर, है ना। हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली, और बड़ा मैं आराम से कहना चाहती हूँ आपको कि आप लोग अपनी, इससे आपकी वोकैबुलरी इन्हांसमेंट करेंगे। आप लोग खुद ट्राई करेंगे कि अपनी वो कैब 2-4 वर्ड्स नए सीख लिए एक दिन में, कोई एडिटोरियल देख लिया कहीं से, खुद सर्च करके देख लिए। ठीक है, वोकैबुलरी इन्हांस करोगे तो कॉम्प्रिहेंशन अच्छी खुद ब खुद होगी। वोकैबुलरी इन्हांस करने के लिए वर्ड सिर्फ लर्न नहीं करने हैं कि दिख गए इधर उधर से मीनिंग लिख लिया कहीं पे, नो। वोकैबुलरी enhancement से ये make sure करना है that you are using those words also in the practical terms। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर लिया, किसी के साथ यूज़ कर लिया, टेक्स्ट में यूज़ कर लिया, सामने वाले को मतलब बता दिया उस चीज़ का। जैसे मैं तो यही करती थी, when I used to learn new words I used to tell it to my friend, है ना, and he was very fond of learning new words। ठीक है, तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी आपको समझ में आता है। येस्टरडे मैंने एक नया वर्ड सीखा विच इज़ अ कॉमन वर्ड, बट आई लर्न इट येस्टरडे, इट वाज टॉय बॉय। ठीक है, तो टॉय बॉय उनको बोला जाता है जो फीमेल लीडर्स इन बिग बिग कंपनीज, जो जिनके अंडर कोई मेल्स हायर हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि ये तो इनका टॉय बॉय है। ठीक है, फीमेल्स आर द लीडर्स एक्सेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है,
तो डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके होंगे रेगुलर इंटरवल्स पे, ट्राई करते रहेंगे, हम लोग आएँ इंटरेक्ट करें, ठीक है। जहाँ पे डाउट है पूछें, क्वेश्चन है पूछें, कुछ भी माइनर से माइनर, मेजर से मेजर चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको पेपर में। आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं अगर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं, या तो वर्क दिया हुआ होता है ऑथर से मैच करने के लिए, टर्म दी हुई होती है ऑथर से या बुक से मैच करने के लिए। जैसे लिट थ्योरी में ये बहुत होगा कि एक टर्म दे दी। अगर हम बात करते हैं हेजेमनी की बात करते हैं, hegemony is a term given by Antonio Gramsci. Subaltern is also a term given by Gramsci. But बहुत बच्चे मार्क करके इसको आ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे मार्क करके आ जाते हैं कि सबॉल्टन है, तो हमने गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक को सबॉल्टन वर्ड यूज करते हुए सुना है, कैन द सबॉल्टन स्पीक वाले ऐसे में, तो इट माइट बी हर ओनली, बट शी बोरोड द कंसेप्ट ऑफ सबॉल्टन फ्रॉम ग्रामसी ओनली, एंटोनियो ग्रामसी। सो हाउ these concepts are related to one another, ठीक है। क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट 1 और 2 वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 ट्रू है, बोथ ऑफ देम आर फॉल्स, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, एटसेट्रा, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस आ जाते हैं असर्शन रीजन बेस्ड। अब असर्शन रीजन का कोई फंडा तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाउ आई यूज टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस पर दैट, मैं असर्शन जब पढ़ती थी, असर्शन के बाद आई यूज टू रीड द रीजन बाय यूजिंग द वर्ड, बाय कनेक्टिंग बोथ द सेंटेंसेस विद द वर्ड बिकॉज, क्योंकि असर्शन है बिकॉज, रीजन क्या है ये। तो अगर मुझे लगता था कि दोनों साथ में जा रहे हैं, तो देन आई यूज टू टिक मार्क कि हाँ assertion is also, yeah, both are correct and R is the correct explanation of A। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही टर्म्स, चाहे ए हो चाहे आर हो, दोनों ही इंडिविजुअल टर्म्स या इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स आए हुए होती हैं, इंडिविजुअल सेंटेंसेस आए हुए होते हैं, तो तब आ जाता है ए एंड आर इज ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि आर एक अलग ही स्टेटमेंट है। तो बिकॉज के साथ उसको ट्राई करें पढ़ने का थोड़ा सा, ठीक है। और हमको फिर एक फैक्चुअल देखते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको चांसेस मिलेंगे जिसमें आप स्कोर कर सकें, ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट्स आ जाते हैं, क्रोनोलॉजी, कोट्स तक आ जाते हैं, कोट्स आ जाते हैं, कोट्स पूछे गए होते हैं। और ये कोट्स आपके दो तरीके के आजकल देखने के लिए मिल रहे हैं, प्रोज में से भी देखने के लिए मिल रहे हैं, आपके पोइट्री में से भी देखने के लिए मिल रहे हैं। पोइट्री की लाइंस आ गई, इवन मेरे वाले पेपर में क्या हुआ था, पोइट्री की लाइंस ऐसे बॉक्स में दी हुई थी, ठीक है, पोइट्री की लाइंस दी हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पे ऑथर दिया हुआ था, ठीक है। सो आई हैड टू मेक श्योर दैट आई एम अरेंजिंग दोज लाइंस, और मे बी दे वर हेडिंग्स और समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं है। तो आई हैड टू मेक श्योर एन अरेंजमेंट, और क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए बोला था उन्होंने, मैच तो फॉलोइंग नहीं था। तो क्रोनोलॉजिकली मुझे पहले राइटर को अरेंज करना पड़ रहा था कि ये राइटर इस एज पे फिट इन करता है। वर्जीनिया वुल्फ इज फ्रॉम द मॉडर्न एज, अगर हम और चौसर की बात करते हैं तो ही कम्स फ्रॉम अ मिडल इंग्लिश पीरियड, एलिजाबेथन की बात करते हैं तो मिड में आएगा। तो दैट्स हाउ द राइटर्स ऑल्सो, देयर फीचर्स ऑल्सो बिकम अ लिटिल इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। और इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप समझ जाओगे हिस्टोरिकली कि वो चीज़ें जो पिछली एज में हो रही थी उसके चेंजेस इस एज में क्यों देखने के लिए मिल रहे हैं। थोड़ा सा आपको अभी बैकग्राउंड का थोड़ा सा बता देती हूँ, चौसर की एज से हटके थोड़ी सी एक बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग ने एज ऑफ जॉनसन के बारे में सुना है ना, हमने एज ऑफ पोप के बारे में, जहाँ पे अलेक्जेंडर पोप बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखते हैं, स्पेशली द रेप ऑफ द लॉक, एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। तो जब वो ये रेप ऑफ द लॉक लिखते हैं, पोप के टाइम पे बड़ा ही शो ऑफ करने का ट्रेंड था, बड़ा ही ट्रेंड था कि दैट पीपल वर द वंस, इस एज को न्यू क्लासिकल एज टर्म करा गया था कि न्यू क्लासिकल एज है। क्लासिकल राइटर्स उस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले जब थे, रोमन एराज में रह चुके थे, रोमन ग्रीक राइटर्स क्लासिकल रह चुके थे, हॉरेस, ओविड, लॉन्जाइनस, ठीक है, ये सारे हमारे, प्लेटो एक्सेट्रा, ये सारे क्लासिकल राइटर्स रह चुके, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट 17वीं 18वीं सेंचुरी में, 17th 18th सेंचुरी में, these writers were imitating the classical writers, the way, the grandeur of thought that they had in their times। तो रोमन ग्रीक लोगों को की राइटिंग्स को, उनके राइटिंग स्टाइल को, ये 17th 18th सेंचुरी में these people were trying to replicate them, hence the age was titled as new classical age।
अब न्यू क्लासिकल एज के बाद जब एज आ जाती है, वो एज आ जाती है रोमांटिक एज। तो जितना न्यू क्लासिकल एज में लोग बढ़ चढ़ के बात कर रहे थे, वही यहाँ पे हमें रोमांटिक एज में थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। रोमांटिक एज में एक टर्न हो जाता है टुवर्ड्स सिंपलिस्टिक नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट, जहाँ पे नेचर 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 के प्रति लव, नेचर के प्रति रोमांस, इस चीज के बारे में बात की जाती है। तो फ्रॉम हाईली एम्बेलिश्ड वर्ड्स, वोकैबुलरी एक्सेट्रा, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है बड़ी सिंपल लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग। मैं आप लोग को पेज नंबर्स दूंगी। आई डोंट हैव द बुक, आई हैव द सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट विद मी, बट आई विल टेल यू द पोर्शंस दैट यू आर सपोज टू रीड घर से। ठीक है, विद रिगार्ड्स टू योर प्रिपरेशन। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ आपके साथ साथ। चलिए, तो व्हाट विल आई बी कवरिंग, व्हाट यूनिट्स और टॉपिक्स विल आई बी टीचिंग यू ऑल। पहले ब्रिट की बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश लिटरेचर की। तो ब्रिटिश लिटरेचर में मैं पढ़ाऊंगी आपको चौसर। चौसर के बाद की एज आती है डार्क एजेस, जिसको द एज ऑफ रिवाइवल बोला जाता है, द एज ऑफ रिवाइवल। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम। सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम। नंबर 4 वी हैव एनलाइटनमेंट, जिसमें पोप एंड जॉनसन आ जाएंगे, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। People will start questioning things. ठीक है, we will have Pope and Johnson here. ड्राइडन आप आंचल के साथ कर लेंगे। ठीक है, then we have romantic and the modern age. Romantic age and number 6 we will be having the modern age. हर एक एज के बाद I will be giving you PYQs। इसके बाद में ही इसके PYQs हो जाएंगे। उसी तरीके से बाकी एजेस के भी हम लोग ध्यान देते रहेंगे कि वी आर प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, अब ये PYQs आप तभी एंड की क्लास में कर पाओगे जब आपने क्लासेस रेगुलरली ली हैं, और सेकेंडली आपको जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोग कंप्लीटली करके आ रहे हो। तो ये तो बात हुई ब्रिटिश लिटरेचर की। ठीक है, ये तो बात हुई आपके ब्रिटिश लिटरेचर की। अब ब्रिटिश के बाद हम लोग या तो इंडियन स्टार्ट करेंगे या अमेरिकन स्टार्ट करेंगे। अगर इंडियन की बात करूं आप लोग के साथ, तो इंडियन लिटरेचर में मैं आप लोग को क्या क्या पोर्शंस कराऊंगी। इंडियन लिटरेचर में वी विल बी कवरिंग इंडियन ड्रामा। ठीक है, इंडियन ड्रामा। वी विल बी कवरिंग इंडियन एस्थेटिक्स, इंडियन एस्थेटिक्स। ठीक है, वी विल बी कवरिंग दलित लिटरेचर। तो दलित आपको मैं कराऊंगी इंडियन वाला, और फेमिनिज्म जो है वो आंचल कराएंगी कवर। ठीक है, कमिंग टू वर्ल्ड और यूरोपियन लिटरेचर, ये लिख लीजिए, साथ साथ में प्लीज लिखते जाइए ताकि आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर आ जाते हैं ब्रिटिश के बाद इंडियन हो गया, वर्ल्ड एंड यूरोपियन लिटरेचर। वर्ल्ड और यूरोपियन में आपको मैं क्या कवर कराऊंगी, इसमें आप अपनी बुक के सामने एच और ए लिख सकते हो ताकि आपको पता रह जाए कि कौन कौन से यूनिट्स जो हैं वो कौन कौन से टीचर कवर कराएंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड लिटरेचर में बात करें तो हमारा रशियन लिटरेचर इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, रशियन करेंगे हम लोग। वी विल डू रोमन टुगेदर, वी विल डू जर्मन, अफ्रीकन, वी विल डू करेबियन एंड कोलंबियन। ये कुछ कुछ टॉपिक्स एक एक दिन में कवर होने वाले भी हैं। ठीक है, जैसे करेबियन कोलंबियन एक में हो गया, जर्मन एक में हो गया, रोमन एक में हो गया, रशियन एक में हो गया। ठीक है, और अमेरिकन थोड़ा सा ऐसा होगा कि जिसमें आपको, जैसे ब्रिटिश में भी मॉडर्न एज और रोमांटिक एज मैं करा रही हूँ, उसी तरीके से अमेरिकन में भी मॉडर्न और रोमांटिक मैं ही करा रही हूँ, रोमांटिक एज और मॉडर्न एज। अच्छा, अमेरिका में रोमांटिसिज्म, ब्रिटिश में अगर हम देखते हैं, हम बच्चे करेंगे बात, ध्यान से सुनिएगा पहले।
अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन में रोमांटिसिज्म पहले आया था, तो ब्रिटेन में जो रोमांटिसिज्म आया था, इट केम विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स इन द ईयर 1798। बट अगर हम बात करते हैं अमेरिकन की, तो अमेरिका में रोमांटिसिज्म आएगा 1830 के बाद, क्योंकि वहां पे इन्फ्लुएंस धीरे धीरे पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव टॉपिक जो आपका है रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ये पतली सी बुक होगी, एक आपकी पार्ट 5 है शायद ये। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में आपको मैं बेसिक मेथड्स और मेथडोलॉजीज बताऊंगी, मेथड्स एंड अप्रोचेस होंगे। ठीक है, जो उसका पार्ट होगा, लिंग्विस्टिक पार्ट से फोनेटिक्स वाला पार्ट है, वो आंचल कवर करेंगी विद द टर्म्स सच एज बैक फॉर्मेशन, व्हाट आर फोनीम्स, मॉर्फीम्स एटसेट्रा, वो कवर करेंगी। मैं जो होंगी, मैं आपके साथ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जब बच्चे को आप बोलते हो कोई चीज़ तो फिजिकली रिस्पॉन्ड करता है, जंप करने के लिए बोला, सब बच्चे क्लास में जंप करने लगे एटसेट्रा। तो ये मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है वो मैं कराऊंगी। The things related to linguistics वाला part would be covered or catered to by Aanchal. ठीक है, ये हो गया। Then we have literary criticism, important. We have लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आप अपनी बुक में ही देख सकते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ग्रीक वाला लिटरेरी क्रिटिसिज्म मैं कराऊंगी। मिडल एज के क्रिटिक्स जैसे आपके एलिजाबेथन एज के क्रिटिक्स एटसेट्रा आ गए, आपके सिडनी आ गए, आपके स्टीफन गॉसन आ गए। ठीक है, देन वी हैव थिंकर्स एनलाइटनमेंट एटसेट्रा वाले, एंड बिना एनलाइटनमेंट वाले भी जो की एज वाले भी थिंकर्स थे वो, एंड देन विक्टोरियन एज। ठीक है, देन विक्टोरियन एज। ठीक है, फिर आपकी आ जाती है लिटरेरी थियोरी, वन ऑफ माय फेवरेट्स यूनिट्स टू टीच। ठीक है, तो लिटरेरी थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, तो लिटरेरी थ्योरी में हमारे पास थ्योरीज आ जाएंगी, जैसे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि आपका विद द फील्ड ऑफ डीकंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने स्लैश डीकंस्ट्रक्शन लिख दिया है। देन वी हैव साइको एनालिटिक, फ्रूइड, लकान, ये आ जाएंगे सारे साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म में। ठीक है, देन वी हैव आर्केटाइपल या मिथ क्रिटिसिज्म, आर्केटाइपल को मिथ क्रिटिसिज्म बोला जाता है। नॉर्थरॉप, फ्राई, मॉड बॉडकिन जैसे आ जाएंगे। ठीक है, वी हैव फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। वी हैव मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, कैपिटलिज्म, बॉर्जुआ एटसेट्रा उसके रिलेटेड। वी हैव न्यू हिस्टोरिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड कल्चरल मटीरियलिज्म, जो थोड़ा थोड़ा सा आपका कल्चरल स्टडीज प्लस मार्क्सिज्म के साथ रिलेटेड होगा। और ये न्यू हिस्टोरिसिज्म के साथ इसलिए रिलेटेड है क्योंकि न्यू हिस्टोरिसिज्म आपका आएगा यूएस में, ये आपका आएगा यूएस में, और आपका कल्चरल मटीरियलिज्म यूके में आएगा। इसी पॉइंट थोड़े से टेनेट्स ये लोग शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, देन वी हैव पोस्ट कॉलोनियल। बुक्स इसलिए हेल्पफुल हैं क्योंकि बुक्स में आपको साथ साथ में मैं बताती रहूंगी, उसको आप लोग कवर करते रहिएगा। ठीक है, यू रीड अबाउट इट, आई विल टेल यू मेजरली अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड, व्हाट आर द मेजर टेनेट्स रिलेटेड टू दीज थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर और हाउ दे आर सिमिलर टू वन अनदर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो इस चीज़ को देखेंगे। फिर आपका आ जाता है एक पोर्शन आ जाता है आपका इंग्लिश इन इंडिया। ठीक है, कि इंग्लिश इंडिया में कैसे डेवलप हुई। तो इंग्लिश इन इंडिया, इसमें हम लोग, ये आपको दो तरीके से बेनिफिट करने वाली है। ये आपकी पेपर 1 में हायर एजुकेशन आता है, उसमें प्री इंडिपेंडेंस कमीशन आते हैं। तो मैं आपको जो मैं पार्ट कराऊंगी दैट विल बी रिलेटेड टू योर प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, और आंचल जो कराएंगी वो पोस्ट इंडिपेंडेंस कराएंगी। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस वाले टाइम पे इंग्लिश का क्या स्टेटस था इन द इंटायर कंट्री, हाउ आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस द स्टेटस रिमेन द सेम, चेंज एटसेट्रा, वो चीज़ें आप देखेंगे। तो पोस्ट आंचल कराएंगी, प्री मैं कराऊंगी, एंड देन विल ऑल्सो बी मूविंग फॉरवर्ड विद कल्चरल स्टडीज़। ये भी मेरा फेवरेट ही होता है, कल्चरल स्टडीज़, बिकॉज कल्चर इज़ एवरीवेयर।
ठीक है। तो कल्चरल स्टडीज में मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे बॉडी स्टडीज, डिसेबिलिटी स्टडीज, यू विल रीड मोर अबाउट पोस्ट ह्यूमनिज्म, साइबॉर्ग्स क्या होते हैं ये, एंड हाउ देयर विल बी मैनी थिंग्स जो आपकी लिटरेरी थियोरी में जो यही यूनिट्स है ना, इनके साथ ही रिलेटेड आप लोग को कल्चरल स्टडीज देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पे कल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे थियोरी के टेनेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थियोरीज वी विल बी अप्लाइंग देम टू द लिटरेरी वर्क्स दैट आर देयर। तो लिटरेरी थियोरी इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप PhD करेंगे, यू वुड वांट टू earn a PhD degree etc in some topic or the other, you will see that eventually इनमें से कोई थ्योरी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, या आप कल्चरल स्टडीज कल्चर को एनालाइज करने जाएंगे। जैसे देयर वाज दिस वन सीनियर ऑफ माइन, उन्होंने फैशन एंड फूड के ऊपर कलेक्टिवली स्टडी करी। तो फैशन एंड फूड तो कल्चर होता है ना, फैशन एंड फूड यहाँ पे कहीं पे नहीं दिखने के लिए हमें मिल रहा, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करना, ये सारा कल्चर के साथ रिलेटेड होता है। तो दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी, ये कुछ टेनेट्स जो होंगे ये बोथ दे विल गो ओवरलैपिंग विद वन अनदर, सर्टेन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज व्हिच विल बी हियर वुड बी रीयूज्ड इन हियर। तो वो रीयूज करते टाइम मैं आपको बताऊंगी कि ये रीयूज हो गए हैं, ठीक है। We will not be discussing the terms time and again in the classroom, but yes of course we will be making sure that whatever is being discussed उसको इतने अच्छे से डिस्कस कर लें कि यहाँ पे समझ आ जाए। नहीं समझ में आता क्लास में टैब के थ्रू पूछिएगा, टिल द टाइम आई डू गेट द टैब आई लास्ट देम आज फिर से। एंड सेकेंडली आप लोग ध्यान देंगे कि आप सब के सब जो हैं होमवर्क पे करके आना है, ठीक है। तो जो मुझे आज आपको बताना था, ये मेजर चंक विद द ओरिएंटेशन सेशन इज बीइंग डन। थोड़ा चौसर की एज के बारे में बता देती हूँ। चौसर की एज की अगर हम बात करें तो रोमन एम्पायर आपने आंचल के साथ पढ़ा होगा कि रोमन एम्पायर वाज आल्सो देयर इन ब्रिटेन, ठीक है। और कैल्टिक्स थे, बार्बरिक्स रहते थे, एंड देन इवेंचुअली व्हेन रोमन एम्पायर उन्होंने कंकर करा ब्रिटेन को, ठीक है, तो ब्रिटेनिया बोला जाता था। इट लेटर ऑन एंगल्स नाम की जो ट्राइब थी उससे इंग्लैंड वर्ड बना, दैट्स वाई इंग्लैंड, ठीक है। सो दिस थिंग वाज आल्सो हैपनिंग। 1066 के आसपास हमें एक बड़ा ही मेजर इवेंट देखने के लिए मिला था। 1066 में क्या हुआ था, 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी, जिसमें कौन थे मेजर हमारे किंग, किन्होंने करवाई थी, विलियम द बास्टर्ड बोला जाता था जिन्हें, विलियम द कंकरर, ठीक है। ये किसने करी थी, ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट करी गई थी बाय विलियम द कॉन्करर, हु इज आल्सो नोन बाय अनदर नेम विलियम द बास्टर्ड, बिकॉज ही वॉज एन इलेजिटिमेट सन, ठीक है, ही वॉज एन इलेजिटिमेट सन, ठीक है। और विद हिम ये एंग्लो नॉर्मन एज जो आपने आंचल के साथ करी होगी, ये अपने साथ ही विलियम जो थे, ही ब्रॉट द फ्रेंच इन्फ्लुएंस विद हिज ओन सेल्फ इन हियर, ठीक है। अपने साथ ही ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो थे उसको लेके आए थे, ठीक है। ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। तो विलियम द कंकरर की अगर हम बात करें, उनके अंडर 3 लैंग्वेजेस बोली जाती थी। ये यहीं पे थोड़ा सा अभी मैं बैकग्राउंड दे रही हूँ। विलियम द कंकरर के अंडर 3 लैंग्वेजेस वर स्पोकन, एंड व्हाट वर दोज 3 लैंग्वेजेस बच्चे, दोज 3 लैंग्वेजेस वर फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश। फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप आपको सिलेबस एंड द वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड वो थोड़ा समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चौसर को, ज्यादा नहीं करेंगे। चौसर को एज अ पर्सन आई इंट्रोड्यूस टुमारो, अभी थोड़ा बैकग्राउंड दे रही हूँ। तो विलियम द कंकरर की अगर हम बात करते हैं, तो जो हम फ्रेंच देखते हैं वो ज्यादातर बोली जाती थी बाय, French was spoken by the king and the aristocrats. Basically, French was the language of the king and aristocracy. जो नोबल्स होते थे किंग के, उनकी लैंग्वेज होती थी फ्रेंच। अगर हम बात करते हैं लैटिन की, तो लैटिन में ही बाइबल लिखी गई थी। तो ये किसकी लैंग्वेज हुई, ये रिलीजियस पीपल जैसे कि ये थियोलॉजियंस, द चर्च की लैंग्वेज हो गई हमारी, चर्च की प्लस पोप की। एंड पोप जो होते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, पोप की अथॉरिटी होती थी ना जो, वो ही वॉज द मेन हेड ऑफ द रोमन चर्च। सो पोप
जो थे ही वॉज कंसिडर टू बी वेरी मच पावरफुल एंड उनके डिसीजन को ही एंड डिसीजन माना जाता था. ही वॉज मोर सुपीरियर दैन द किंग हिमसेल्फ एज वॉज, राइट. सो अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश उस पॉइंट ऑफ टाइम पे द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल. English was the language of the common people. So this was what we have in here. Chaucer के बारे में थोड़ा verbally बता रही हूँ. Chaucer himself came from the family of wine sellers, merchants, etc. तो ऐसा था कि चौसर की फैमिली बहुत अमीर थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. 14 सेंचुरी में, 14 सेंचुरी में फैमिली वाज डूइंग वेरी गुड, वेरी नाइसली, ईच एंड एवरीथिंग वाज डन, right? So he belonged from a well-off family, and that well-off family had many connections, and these connections led Chaucer when he grew up as a person. Even before growing up, Chaucer अच्छी फैमिली में थे, तो ही गॉट अ नाइस होल्ड ऑन एजुकेशन. ठीक है, ही गॉट एजुकेटेड, अच्छी अच्छे से इन्होंने पढ़ाई करी अपनी. ठीक है. एंड विद रिगार्ड्स टू द सेम थिंग, ऐसा भी बोला जाता है कि जब ये इटली में गए थे, अगर आपने बोकाशियो का नाम सुना होगा, बोकाचियो को भी मिले थे ये. ठीक है. एंड ही हैज ऑल्सो, जो कैंटरबरी टेल्स की हम बात करते हैं, वो बोकाचियो की डी कैमरॉन के ऊपर ही मॉडल करी गई है. ये थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया. ठीक है. सो ही हैज मेट पीपल अराउंड, ही हैड द अपॉर्चुनिटी एंड ही लिव्ड अ प्रिविलेज लाइफ. ठीक है, बिकॉज ही बिलोंग टू अ फैमिली जो कि बड़ी ही अमीर थी. ठीक है. सो विथ दैट थिंग, वाइन सेलर्स, ट्रेडर्स एटसेट्रा थे, तो इनको नोबल्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला. इनको ये भी मौका मिला कि ही कुड बी एन एम्बेसडर टू इटली, ही कुड बी एन एम्बेसडर टू फ्रांस, एंड ही वाज एम्बेसडर एज इन, ये ब्रिटेन से जाते थे टू रिप्रेजेंट ब्रिटिश people in France, in Italy as well. So he was a very important figure during those times. एंड इन्होंने ही हेल्प करी है. जब ये चौसर कैंटरबरी टेल्स लिखेंगे, जिसका जनरल प्रोलॉग की थोड़ी समरी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, हैंड आउट मैं अपलोड करा दूंगी. ऑल्सो एक बार क्या होमवर्क में पढ़ के आएंगे, आई विल जस्ट टेल यू इधर से ही थ्रू द जो मेरे पास नोट्स हैं यहाँ पे, एक दफ़ा देख लेते हैं. I don't have the book in the hard copy format. एक बार देखते हैं. Okay, so I think the age of Chaucer starts from page number 19 of yours. ठीक है. So you will come reading a little bit about the literary background. You will read page number 19 and 20. So basically you will read the introduction. ठीक है. You will read about the 100 Years War. You will read about the Black Death, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थ्रू बहुत सारा ट्रेड हो रहा था और पोर्ट्स के ऊपर बहुत सारे चूहे आ जाते थे. तो जब चूहे शिप्स में जाते थे, दे यूज्ड टू इन्फेस्ट. ठीक है. तो वो उससे भी बहुत एक वायरस फैल गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो ब्लैक डेथ. तो लोगों के अंदर पस भर जाती थी, एंड इट वाज अ कम्युनिकेबल डिजीज. एक से दूसरे तक फैलने वाला डिजीज था ये. इट वैनिश्ड ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन. ठीक है, ऐसा बोला जाता है. तो उसके बारे में पढ़ेंगे, पेजेंट्स रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. एंड रिलीजियस इवेंट्स. तो आप रिलीजियस इवेंट्स प्लस द लिटरेरी बैकग्राउंड, इसको एक बार पढ़ के आएंगे. वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द क्लासरूम ऑफ कोर्स. ठीक है. बट मेक श्योर दैट यू गाइज डू कम डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड. चौसर को बाकी कल डिस्कस करेंगे. कल फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी जनरल प्रोलॉग का. तो कल के लिए आप लोग होमवर्क लिखेंगे. अभी फॉर द टाइम भी होमवर्क है आपका पेज नंबर 19-20, जो कि आपका इंट्रो से लेके टू लिटरेरी बैकग्राउंड, यहाँ तक आप एक बार अपनी बुक के पेजेस को पढ़ के आएंगे. आई विल गिव यू एन आइडिया. विल बी डिस्कसिंग. ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है पढ़ने के लिए. उसको पढ़ के आएंगे, फिर समझेंगे और अच्छे से इन टुमारोज लेक्चर. राइट. एंड विद दिस आई टेक योर लीव. आई होप चीज़ें विद रिगार्ड्स टू हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आप लोग को. ठीक है. तो उस चीज़ में नोबडी इज गोइंग टू बी somewhere or the other posing any sort of questions or queries, है ना. यूनिट्स वगैरह तो मैंने सीधी सीधी बता ही दी हैं आपको, तो वो डरेंगे नहीं उस चीज़ से. उसको कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सके, और होमवर्क से कंसिस्टेंट रहेंगे. ठीक है. होमवर्क के साथ
कंसिस्टेंट रहेंगे. थैंक यू सो मच देन. हैव अ गुड डे. बाय बाय.